ابھی آپ کو خبر دیں گے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کے 7 رہنما اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں۔ فاروق اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ فاروق، اپڈیٹ کیجیے گا، ملاقات کے لیے کون کون آیا ہے؟ جی بالکل، بانی پی ٹی آئی سے آج ملاقاتوں کا دن ہے اور گزشتہ روز لسٹ بھی فراہم کی گئی تھی اڈیالہ جیل انتظامیہ کو کہ ان افراد کو ملاقات کی اجازت دی جائے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی مشاورت کے بعد نام دیے جاتے ہیں اڈیالہ جیل انتظامیہ کو جنہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے۔ آج 7 رہنما اڈیالہ جیل پہنچے ہیں۔ ان رہنماؤں میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان، سینیٹر اون عباس بپی ہیں، حافظ فرحت عباس ہیں، آصف خان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر امجد ہیں اور جنید اکبر اور سابق گورنر کے پی شاہ فرمان جو ہیں، یہ رہنما ملاقات کے لیے اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ اب سے چند ہی لمحے قبل توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ختم ہوئی ہے اور اب ان رہنماؤں کو سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ہم نے اپنا سارا معاملہ آرمی چیف کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دوسری جانب سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی غیر رسمی گفتگو، بتایا پشاور میں وہ اور علی امین گنڈاپور آرمی چیف سے ملے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے طاقتور حلقوں سے بیک ڈور رابطوں کی تصدیق کر دی ہے۔ کہا اعتماد بحال ہوا ہے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی کہا بانی سے کہہ دیا ہے میرا موقف واضح ہے، فضل الرحمان کو ایسا ہی جواب دوں گا۔ فضل الرحمان کی حیثیت بانی کے مقابلے جتنی ہیں۔ اگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں تو اعتماد بلڈ اپ ہوا ہے، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا۔ فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں وہ جو میرا چونکہ وہاں پہ ضلع میں مخالف ہے اور ڈی خان کا ہے تو اس کے باہر نکل کے سوچے تو بڑا کلیئر ہے میرا اسٹانس۔ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ جی میری 3rd ٹیئر کی لیڈرشپ ملے گی عمران خان کو۔ مولانا فضل الرحمان تمہاری بھی اپنی حیثیت رہی ہے کہ تم عمران خان کے سامنے بیٹھ سکو، جو تمہارا کیلیبر ہے پولیٹیکل اور عمران خان کا لیڈر کیلیبر ہے، میں اس کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں، میں اس میں اپنی رائے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم نے مینڈیٹ چوری کیا ہے اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے پختونخوا میں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب آ جائے، بیٹھ جائے، ہلکے کھول لیتے ہیں، فارم 45 لیتے ہیں، آپ کے 4-5 گھوم رہے ہیں، یہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا یہ فارم 47 والے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرے گا، میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کو اس لیے جواب دوں گا کہ الٹا مینڈیٹ تو میرا پختونخوا میں چوری ہوا ہے۔ صاحب آپ کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، آپ تو خود پاکستان سے ہی فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے دھوکہ کیا ہے ان کے نام لو، ہمارے اوپر بات مت کرو، میں یہ موقف رکھتا ہوں اور اگر وہ بولے گا تو میں اس کو جواب دوں گا۔ تحریک 3 صفحات پر مشتمل تحریری مطالبات حکومت کو پیش کر دیے۔ کہا جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دیے تو مذاکرات جاری نہیں رکھیں گے۔ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے چیف جسٹس پاکستان یا سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے جائیں۔ پہلا کمیشن بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کی قانونی حیثیت اور 9 مئی واقعات کی تحقیقات کرے، جس میں CCTV کا جائزہ بھی شامل ہو۔ دوسرا کمیشن 24 سے 27 نومبر تک کے واقعات کی تحقیقات کرے۔ تمام سیاسی قیدیوں کی ضمانتیں منظور کی جائیں، سزائیں معطل کر کے انہیں رہا کیا جائے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس سے متعلق احکامات کی حمایت کریں۔ کمشنر کی کارروائی عوام اور میڈیا کے لیے کھلی ہونی چاہیے۔ انٹرنیٹ بندش کی قانونی حیثیت اور اس کے اثرات کا بھی جائزہ لیا جائے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مشاورت سے 7 دن میں کمیشن تشکیل دیا جائے۔ تحریری مطالبے میں کہا گیا کہ دونوں تحقیقاتی کمیشن کا قیام حکومت کی سنجیدگی ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کمیشن تشکیل نہ دیے گئے تو مذاکرات جاری نہیں رہیں گے۔ تحریری مطالبات پر علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، علامہ ناصر عباس، اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا کے دستخط ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں مذاکرات درست سمت میں جا رہے ہیں، کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے، یہ بہتری کی طرف ہی جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر نے تحریری طور پر مطالبات پیش کیے ہیں، دونوں جانب سے بہتر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اپوزیشن نے اپنے لیڈر سے ملاقات کا مطالبہ کیا۔ مذاکرات ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں، اس میں کوئی تشویش اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ چارٹر آف ڈیمانڈز لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے ان رائٹنگ پیش کیا۔ چارٹر آف ڈیمانڈز پڑھ کے سنائے، ڈیٹیل میں ایک گفتگو ہوئی، دونوں سائڈز کے اس میں حصہ لیا، رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بہتر سے بہتر رستہ کون سا ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی کہ ان کے
लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने 2 डिमांड्स दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन को पेश की थी, जिसमें मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी और टेररिज्म के ऊपर भी पूरे मुल्क को इकट्ठा होना है, इसके ऊपर भी कोई कमेटियां तश्कील दी जाए, इसके ऊपर भी साथ साथ काम करें, चूंकि ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला है। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में ये फैसला होगा कि किस तरह लेके आगे चलना है। हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 7 दिन में अपोजिशन के मुतालबात पर बाज़ाब्ता तौर पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन की जानिब से बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात के मुतालबे की तायद की है। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर दोनों कमेटियों की मुशावरत से करेंगे। के सरबराह जनाब उमर अयूब खान ने अपनी कमेटी की तरफ से तहरीरी मुतालबात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ स्पीकर सरदार अयाज सादिक के सुपुर्द की। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग दिनों के अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। इस दौरान हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें अपनी अपनी क़यादत और वकला से मुशावरत और रहनुमाई लेकर इज्तिमाई मौक़िफ़ से अपनी कमेटी को आगाह करेंगी, जो फिर अपोजिशन कमेटी को उसके मुताबिक बताया जाएगा। अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडयाला जेल में अपने लीडर जनाब इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायद की। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर सरदार अयाज सादिक दोनों कमेटियों से बात करेंगे। हुकूमत ने कमीशन बनाने के लिए वक्त मांगा है। हमने कहा कमीशन बनाने का उसूली फैसला हो जाना चाहिए। कमीशन के मामले पर इत्तफाक नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। PTI रहनुमा मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा कहते हैं किसी भी सतह के मुज़ाकरात का नतीजा यहाँ ही नजर आएगा। 31 जनवरी से पहले हुकूमत का जवाब आना चाहिए। वक्त मांगा है जवाब देने के लिए हमने ये कहा है कि ये उसूली जो फैसला है ये हो जाना चाहिए कि कमीशन बनेंगे। 9 मई के हवाले से 26 नवंबर के हवाले से ये तमाम बातें हम समझते हैं इतनी अहम हैं कि अगर इन पे उसूली इत्तेफाक नहीं होता तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, आगे हम बढ़ नहीं सकते। जो हमारे असीरान की रिहाई है वो भी हमने लिख के दे दिया है कि कानून के मुताबिक अदालतों से जहाँ लग़्व मुकदमे हैं उनको ख़त्म किया जाए। ज़मानतें बनती हैं हमारे लोगों की, उनकी ज़मानतें होने दी जाएँ, सरकार मुदाखलत ना करे। 7 दिनों की बात की है, 7 दिनों में उन्होंने उसूली अपना फैसला हमें बताना है कि कमीशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 31 जनवरी से पहले ये मामला मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से हम तक आना चाहिए, उनका जो मौक़िफ़ है हम तक आना चाहिए। बिल पर 7 दिनों में जवाब नहीं आ पाता। हम खान साहब से मिल रहे हैं जी, इंशाल्लाह आजकल में ये भी आज बात हुई है कि हमारी दोबारा मुलाकात कराई जाएगी, उनसे हम हिदायत लेकर आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन अयूब कहते हैं बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात नहीं कराई गई। आर्मी चीफ से मुलाकात के सवाल पर कहा गंडापुर साहब से पूछिए। 31 जनवरी डेडलाइन पर नजरसानी के सवाल पर कहा बानी का फैसला बानी ही तब्दील कर सकते हैं, सजा हुई तो आला अदलिया जाएंगे। मैं बानी PTI से नहीं हुआ। हमारे 2 फरिश्ते और एडिशनल फरिश्ते भी बैठे हैं। गंडापुर साहब ने भी आज कहा कि आर्मी की तरफ से मुलाकात हुई थी। कौन से पूछेगा? स्पीकर ने आपके फेवर में ऐलान कर दिया कि जल्द आपकी मुलाकात होगी। अभी हमें बताएंगे कब हमारी तो आपको उम्मीद है सर? आजादाना माहौल में इमरान खान साहब कन्विक्टेड प्रिजनर नहीं है, वो अंडर ट्रायल हैं, उनके खिलाफ केसेस सियासी हैं। हमारा राइट है, हम लोग अनमॉनिटर्ड मुलाकात करना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकरीर जल्द अज जल्द। स्पीकर नेशनल असेंबली साहब को मैंने खत लिख दी है। शिबली फराज साहब ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दी है। पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म करनी चाहिए। हुकूमत ने अभी तक अप्रोच नहीं किया, हमने पहल की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 31 जनवरी की डेडलाइन दी है, इस पर नजरसानी कर सकती है। जो डिसीजन वजीर आजम इमरान खान साहब का है वो सिर्फ वजीर आजम इमरान खान साहब ही चेंज कर सकते हैं। खान साहब को सजा किया तो मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हम लोग हायर जुडिशरी में जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI को चैलेंज कर दिया है। कहते हैं साबित कर दें, अंगूठियां नहीं ली, साबित करें करप्शन नहीं हुई। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। बानी डील करना चाहते हैं, करप्शन पर कोई ढील नहीं मिलेगी। मसाइल का हल बानी PTI की रिहाई है। बानी कह चुके हैं कोई सियासी इंतकाम नहीं, वो अपनी ज़ात की हद तक सबको माफ़ कर चुके हैं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ज़रूरत होती है तो एक रात में तरमीम ले आते हैं।
कामयाब होने चाहिए, लेकिन हुकूमत ने इसे दीवानी का मुकदमा बना दिया है। जब आपकी जरूरत होती है 26वीं आईनी तरमीम के लिए तो लोग एक रात में तरमीमें पास कर लेते हैं। करने को चाहें तो 2-3 दिन के अंदर भी हो सकते हैं। मुझे इख्तियार दें, 3 दिन में रिजल्ट आपके हाथ में थमा दूंगा। मुल्क को कौम का मसला है तो आप तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। तमाम मसाइल के हल के लिए जादू की कुंजी है, और वो जादू की कुंजी है इमरान खान साहब, साबिक वजीर आजम की रिहाई। बस जिस आदमी को 500 दिनों से जेल में डाला है वो कहता है मेरा कोई सियासी इंतकाम नहीं है, मैं अपनी जात की हद तक सबको माफ करता हूँ। इससे बड़ा दिल किसी का होगा? मुतालबात का उनको पता है, वो लिख के भी दे देंगे। क्या लिख के क्या देना है? ये मुतालबा है ना, इमरान खान की रिहाई है, और उसके साथ साथ 26 नवंबर 9 मई को जो हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है। जिस पे इल्जाम है वो खुद कह रहा है कि भाई मेरा दामन साफ है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सिविल कोर्ट में ऑफिशियल ट्रायल इसका चाहिए। अलकातिर ट्रस्ट केस का फैसला जो भी हो, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज कहते हैं हुकूमत 9 मई के पीछे छुपकर अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहती है। खैबर के इलाके तीरा में बढ़ते दहशतगर्दी वाक़यात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, इसी पर मजीद जानेंगे। लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, अपडेट कीजिएगा। जिला खैबर के इलाके तेरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और बेगुनाह के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातें बढ़ना शुरू हो गई थी, जिसके नतीजे में काफी बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुए। इस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में खारिज के खिलाफ वसी तर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किए। 14 दिसंबर से शुरू किए गए इन ऑपरेशन के दौरान अब तक 22 खारिज मारे जा चुके हैं, 18 खारिज जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इसका इयादा किया गया है कि इलाके में अमन की मुकम्मल बहाली और खारिज के मुकम्मल खात्मे तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाड़ा चनार, बगन, अलीजई, बालिशखैल, सदर और दीगर इलाकों के लिए जाने वाले काफिले पर बगन के करीब फायरिंग की गई है। एसओ खुर्रम का कहना है कि फायरिंग का सिलसिला जारी है। कुछ गाड़ियों को आग भी लगाई गई है। रॉकेट लगने से काफिले की एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जाए वक़ू की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। आज खुरनोश और दीगर इस्तेमाल की अशिया पर मुश्तमिल 35 गाड़ियों का तीसरा काफिला रवाना किया गया था। दूसरी जानिब लोअर कुरम के इलाके बालिशखैल और खारखले में आज भी मोर्चे मिसमार किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि अब तक 7 छोटे बड़े बंकर मिसमार किए जा चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई की इजाजत से आर्मी चीफ से मुलाकात की। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने बताया, बानी ने कहा है आर्मी चीफ से मुलाकात खुश आइंद है, मुल्क की इस्तेहकाम के लिए बातचीत जरूरी है, बातचीत आगे बढ़ेगी तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले थे। आपसे मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए हैं तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात सर प्रोग्राम में जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, खान साहब के लिए करता हूँ, खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ, उनके जो हिदायत होते हैं उनके मुताबिक। कैसे माहौल में मुलाकात हुई? कैसे माहौल में मुलाकात हुई? कंप्लीट कर लो प्लीज। तो खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। हमारे जो मुतालबात है वो 2 है। एक है कि जुडिशल कमीशन बने, जो 2 इवेंट्स है अकरेंसेस है उसके लिए बने, और इसके साथ ही जो रिहाई है वो वाली बात। अगर हुकूमत वो मायदगी जाहिर ही नहीं कर रही आगे बात करने की वगैरह, तो फिर तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा? अगर हुकूमत ने कहा कि यस हम आगे बढ़ रहे हैं तो हुकूमत हमें देखिए इंशाअल्लाह ताला के एको आप सारे लोग ये बात दरअसल ये है कि जिस तरीके से आज खान साहब ने कहा है मीडिया में कि कोई चीज़ें मुल्क की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, उनमें से बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नजर नहीं होगी, कोई हालात फिट नहीं होंगे, उस माहौल में होनी चाहिए। यह भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, और वो कमीशंस के हवाले से भी हुकूमत ने हमें बताना है इन्हीं 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कि वो कब तक ये बनाएंगे, और तभी आगे ये नेगोशिएशंस प्रोसेस चलेगा। आखिरी बात मैं कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में याद रखिएगा, यह भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, और वो कमीशंस के हवाले से भी हुकूमत ने हमें बताना है इन्हीं 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कि वो कब तक ये बनाएंगे, और तभी आगे
یہ نیگوشیشن پروسیس چلے گا. آخری بات میں کہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں یاد رکھیے گا انرجی کرائسس ہمارے سر کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے. انرجی کرائسس بجلی اور گیس کی مد میں اسی مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی 2018 کی جو حکومت تھی اس وقت انہوں نے جو غلط معاہدے کیے تھے اس کی کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیپیسٹی پیمنٹ 2018 میں تقریباً 250 ارب تھیں. آج کیپیسٹی پیمنٹس 1600 ارب سے بھی تجاوز کر گئی ہیں ان کی غلط پالیسیز اور معاہدوں کی وجہ سے, اور اس کا یہ جواب نہیں دے رہے. اسی طرح پیٹرولیم سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ کا آپ اندازہ لگا لیں, سب کا سب ذمہ دار یہ لوگ ہیں. اور اس پہ آخری بات کروں کہ مسلح افواج کو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو چوری کے تدارک میں ملوث کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ وہاں پہ مشکلات پیدا ہوں گی, فیلئر پیدا ہوں گے, اور آپ کے ٹروپس, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی اپنے صحیح مقصد سے ہٹ کے بجلی کی چوری میں لگ جائیں گے. اور یہ تجربہ نواز شریف کے دور میں ہو چکا ہے اور اس کا رزلٹ نہیں آیا, کیونکہ سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے, اور وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے غلط معاہدوں کی وجہ سے آج پاکستان میں فی یونٹ بجلی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 85 روپے سے بھی زیادہ یونٹ پہنچ گئی ہے, اور غریب آدمی پس رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آج ڈیٹا ریلیز ہوا ہے کہ وہ منفی گروتھ ہے. تو جس گاڑی کا انجن چل ہی نہ رہا ہو, سیز ہو رہا ہو, وہ معیشت کیسے چلے گی؟ بے روزگاری آپ کی بڑھ رہی ہے. 14 ارب ڈالر آپ کا جو 2 ملین یا 20 لاکھ لوگ نوجوان پاکستان سے گئے تقریباً ان کی وجہ سے آپ کا 14 ارب ڈالر ملک سے باہر چلا گیا, اور دوسری طرف ہم لوگ 1.5 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. اچھا زید صاحب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک کہا, میں ذرا مختلف اینگل سے بات کروں گا. ہماری جو تاریخ بنی تھی اس کا نام تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان. آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, آئین کو درخور احترام نہیں سمجھا جا رہا, منتخب پارلیمنٹ کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. فبریلی کے الیکشن کا جو کچھ ہوا, جنہوں نے جیتا تھا وہ بھگا دیا گیا, اب یہ لوگ بیٹھے ہیں. میں تو اپیل کروں گا تمام پاکستان کے لوگوں سے, ہر ادارے کے لوگوں سے, کہ بھائی پاکستان میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو آئین کو بالادست بنانا چاہتے ہیں, جو آئین کے تحت الیکٹڈ پارلیمنٹ کو طاقت کا سچر بنانا چاہتے ہیں, جو ہر ادارے کو اپنے اس فریم میں دیکھنا چاہتے ہیں جو آئین نے مقرر کیا ہے. یہاں پتہ نہیں کیوں لوگ اس سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. میں اپنے ساتھیوں سمیت ریکویسٹ کرتا ہوں تمام اداروں میں, چاہے ججز ہوں, چاہے جنرلز ہوں, چاہے جرنلسٹ ہوں, چاہے تاجر ہوں, کہ بھائی بسم اللہ کریں. اس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا اس صف میں؟ یہ صف پاکستان کے بچانے کا صف ہے, آئین کی بالادستی کا صف پاکستان کو بچانے کا صف ہے, پاکستان کو آگے بڑھانے کا صف ہے. باقی آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں. پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں, دیٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. وہ آئین کے اسپرٹ کے خلاف ہے. پتہ نہیں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں. ہمارے کسی سے کوئی دشمنی نہیں. اگر ہمارے لوگ آئین کے تحت چلیں گے, ادارے آئین کے تحت چلیں گے, ہم ان کو سلام کو کر دیں گے. لیکن جو آئین سے کھلواڑ کرے گا اس کے خلاف ہم نے آواز بلند کرنی ہے, ہم نے لوگوں کو اس کے لیے بلانا ہے. باقی میرے دوست جو کچھ کہہ رہے ہیں, آئی سپورٹ دیم آل. بسم اللہ. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت
उमर अयूब साहब ने तो बात की, जो पॉलिटिकल हमारे नुक्ता नज़र है उसके हवाले से बात की है, क्योंकि मैं हमेशा अफगानिस्तान के हवाले से और जो हमारे सूबे के मसाइल है उस पर बात करता हूँ, तो आज भी वही कहूँगा। और मैं इस मौके पर इतना कहूँगा कि देखें, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि होश के नाखून ली जाए। जो इस वक्त अफगानिस्तान और हमारे जो बॉर्डर एरिया पे हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, और इसके लिए बहुत संजीदगी की ज़रूरत है, बहुत जिम्मेदारी की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए और अफगानिस्तान के साथ तमाम मामला और टेबल पे बैठ के डिप्लोमेसी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसको इस्तेमाल करके उसके साथ मामला आगे बढ़ाया जाए। इस वक्त हमें जो हमारे खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनको जो बुनियादी मसला है वो लैंड ऑर्डर का, और जो ये सूरत हाल आगे बढ़ रही है तो हमें डर है कि आइंदा 5-6 महीनों में सूरत हाल उस हद तक चली जाएगी कि किसी कंट्रोल में नहीं होगी। जो भी बात करनी है वो टेबल पे बैठ के, और वो पॉलिटिकल लोग करें, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं स्पीकर था तो अफगानिस्तान के वजह से हमने स्पेशल कमेटी बनाई थी, और इस पर हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए थे, हमने अपना जो हमारी लोकल कम्युनिटी थी उसकी जो कारोबार था उसको दवाम भी बख्शा था, और ख़ासकर जो उस वक्त हमारा विजन था कि हम अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को पाकिस्तान की जो हमारा ट्रेड है हम अफगानिस्तान की रूट से हम जो सेंट्रल एशिया और एशियन स्टेट जो है उस तक पहुँचाएंगे। और उस वक्त हमने एक एग्रीमेंट भी किया। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है, और असद कैसर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, उनके साथ साथ उमर अयूब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। उमर अयूब की जानिब से कहा गया है कि हमने हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रख दिए हैं, हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के हवाले से 7 दिन में बताना है। इस वक्त पाकिस्तान में तवानाई बहरान सर पर खड़ा है। मजीद कहा कि तमाम बहरानों की जिम्मेदार नून लीग है, चाहते हैं बानी PTI से मुलाकात आज़ादाना माहौल में ही कराई जाए। मजीद कहा कि हुकूमत के लोग गलत बयानी से काम ले रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई की जानिब से भी गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क में आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लोग पार्लियामेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज़।